The Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। Once again, we thank and praise God for this beautiful time that He has given us. और एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। A time of worship, thanksgiving, prayer. परमेश्वर की सन्मुख आराधना प्रार्थना करने का समय। And now it is time to meditate upon the word. और अब समय होगा कि हम वचन में ध्यान देंगे। I hope you have joined us right from the beginning. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हो। And you are in the spirit of worship and learning from the Lord. और आप परमेश्वर से आराधना की आत्मा में यहाँ पर मौजूद है और परमेश्वर से कुछ सीखने के लिए यहाँ पर है। And we will meditate upon the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। As you are aware of the fact that we are meditating sequentially upon the Song of Solomon. जैसे कि आपको विदित है कि हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से हमारे अध्ययन को कर रहे हैं। Last time we had studied the first 2 or 3 verses of the chapter 6. और पिछले हफ्ते हमने 6वें अध्याय के पहले 2-3 वचनों को सीखा था। The friends of the Shulamite or the bride are asking her, where would you find your lover? और जो उसके दोस्त है उस वधू के, वो उसको पूछ रहे हैं कि तुम अपने दुल्हे को कहाँ ढूंढ रही हो? And she says that my beloved will be in his own fields where he is tending his sheep and looking after the crops that he has. और फिर वो उनको बताती है कि मेरा दूल्हा वहाँ पाया जाएगा जहाँ वह अपने भेड़ों की चरवाही कर रहा है। And we have learned last time that we have to be where our Lord is, where our beloved is. और हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि हमें उस जगह पर मौजूद रहना है जहाँ पर हमारा परमेश्वर और हमारा प्रेमी मौजूद हो। The lady knows that where he will be found, but because of her not opening the door and wandering in the city, she perhaps does not feel like going there. इस दुल्हन को पता तो है कि कहाँ पर उसका दूल्हा मिलेगा, पर उसके दरवाजे न खोलने से और इधर उधर भटक जाने की वजह से वो उस जगह पर नहीं पहुँच पा रही है। She is able to show the direction to the other friends, but and also willing to send her message to the beloved. और अपने दोस्तों के जरिए उस तक संदेश जरूर पहुँचाना चाहती है वो। And she can direct the friends also where they will find him. और वो अपने दोस्तों को बता भी सकती है कि वो कहाँ मिलेगा। But the unfortunate thing is that she herself is not able to go there. पर दुख की बात यह है कि वो खुद वहाँ नहीं पहुँच पाती। Because of the damage that we give to our spiritual life at times, we just become the direction givers, and we ourselves do not go to that place. और जो नुकसान हम अपनी जिंदगी में अपनी आत्मिक जिंदगियों में कर लेते हैं, हम दूसरों को रास्ता तो बता देते हैं पर हम खुद वहां तक नहीं पहुंच पाते। My beloved people, it's our duty to see that we are where our Lord is. मेरे प्रिय लोगों, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहां पर हो जहां पर हमारा परमेश्वर मौजूद हो। Just not showing people a direction, but also reaching there yourself. सिर्फ लोगों को रास्ता न दिखाए परंतु स्वयं उस जगह तक पहुंच जाइए। The Shulamite is not able to go there, but she is able to give the direction. जो दुल्हन है यहाँ पर, ये वहाँ पर पहुँच नहीं पाती पर रास्ता बताने के लिए तत्पर है। May the Lord bless us so that we know that where our lover is, our beloved is, and what he is doing, and we also join him in that. परमेश्वर हमें आशीषित करे इस तरह से कि हम ये जाने कि हमारा प्रेमी कहाँ मिलेगा और हम भी वहाँ जाकर उसके साथ सम्मिलित हुए। This is what she expressed earlier also in this song. और इससे पहले भी उसने इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पहले भी कहा है। The lady says that my beloved, where is your tent and where do you keep your sheep? वो दुल्हन ये कहती है कि मेरे प्रिय, तो तुम्हारा तंबू, आपका तंबू कहाँ है और आप अपनी भेड़ों को कहाँ चराते हो, मुझे बताओ। I will also pitch my tents near that. और मैं भी उस जगह पर जाकर अपने तंबुओं को बनाऊंगी। So that I don't have to wander here and there looking for you. ताकि मुझे इधर उधर न भटकना पड़े तुम्हारी खोज में। But I would be much nearer to you. पर मैं तुमसे काफी करीब रहूंगी। See, as a Christian, we need to understand the things and the steps that we take to be nearer to the Lord. एक मसीह होने के नाते हमें ये जान लेना है कि हमारे क्या कदम है जो हमें परमेश्वर से करीब लेकर आते हैं। And the company of saints and the fellowship of saints, the word of God, the prayer, the worship, and all our associations around us help us to be near the Lord. और संतों की संगति और वचन में बने रहना और संगति में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, ये हमारी मदद करता है और सहायता करता है कि हम परमेश्वर के करीब पाए जाए। But if we do not
make use of these opportunities that are before us, then we miss the scene, but we make other people go to the scene. पर यदि हम इन जो अपॉर्चुनिटीज है उसका फायदा ना उठाए तो हम लोगों को डायरेक्शन तो दिखा लेंगे पर हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. Today's message is that the bride is very beautiful. आज का जो संदेश का विषय है वो ये है कि वधू सुंदर है. And the beloved also is equally attracted towards her. और जो उसका दूल्हा है वो उसके प्रति आकर्षित है. You see, whenever there is a love relationship, it has to be mutual. देखिए, जब कभी भी एक प्रेम का संबंध होता है तो वो म्यूचुअल होना चाहिए. And both the parties are equally important in the relationship. और दोनों पार्टीज इक्वली इम्पोर्टेंट होती है उस संबंध में. Because we are born in sin and we are weaklings. क्योंकि हम पाप में पैदा हुए हैं और हम कमजोर हैं. At times we underestimate ourselves and we feel that we are not worthy of the Lord. हम अपने आप को कमजोर पाते हैं और परमेश्वर के योग्य नहीं पाते. This is what happened to the Shulamite also. और यहाँ पर उस दुल्हन के साथ भी यही हुआ. And she is so depressed because of wandering in the night in the city and her experiences. और वो इतनी डिप्रेस हो जाती है इधर उधर भटकने की वजह से और जो भी उसके साथ हालात हुए थे उनकी वजह से. That she undervalues herself. कि वो अपने आप को नीचा समझती है. And she feels that she is not worthy of the lover. और वो सोचती है कि वो अपने प्रेमी के योग्य नहीं है. So her only alternative left is to send him a message that she is lovesick. तो यहाँ पर उसके पास एक ही चारा बच जाता है और वो यह है वो अपना संदेश पहुँचाती है अपने प्रेमी को कि वो प्रेम में रोगी है. But that is not going to solve the problem. पर ये कोई समस्या का हल नहीं होता. But suddenly a word comes from the lover also. और यहाँ पर प्रेमी की तरफ से भी एक संदेश उस तक आता है. And this encourages the Shulamite. और ये उसको प्रोत्साहित करता है. Though she was already cold in her love, but now this word from the beloved revives her. और हालांकि वो अपने प्रेम में ठंडी हो चुकी थी पर ये प्रेम का संदेश जो उसके प्रेमी ने उसे भेजा है ये उसे जागृत करता है. The lover appreciates her. ये जो प्रेमी है उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी सराहना you see, करता when है. we see the 7 letters written to the 7 churches in the book of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उन 7 कलीसियाओं के पत्रों को पढ़ते हैं, then the Lord appreciates each and every church. तो परमेश्वर जो है वो हर एक कलीसिया की सराहना करते हैं. Jesus owns each and every church. और यीशु मसीह हर एक कलीसिया को अपना कहते हैं. He first appreciates the good qualities of the church. और सबसे पहले वो कलीसिया की अच्छी भलाइयों को बताते हैं. And then he admonishes her for the wrongdoings that are found in the और church. फिर वो जो बुरी बातें कलीसियाओं में पाई जाती है उसके बारे में उन्हें बताते हैं. And then he suggests what can be done to overcome this. और फिर वो उसको एक सजेशन देते हैं, वो सलाह देते हैं कि इन सब चीजों से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं. And then finally he says that if you are a victor, if you win over these things, you will be rewarded by the Lord. और अंत में वो कहते हैं कि यदि तुम इस पर जय पाओ तो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मुकुट मिलेगा. See, this is the approach of the beloved towards his lover. और ये उस तरह का अप्रोच है जो दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए दिखाता है. And that's why the bride should never be discouraged. इसीलिए जो दुल्हन है उसको किसी भी तरह से डिस्करेज्ड या उदास नहीं होना See, चाहिए. most of the time believers waste their time in underestimating themselves. बहुत सारे वक्त में ऐसा होता है कि विश्वासी अपने आप को नीचा समझते हैं. One of the problems is the feeling of guilt. और ऐसी एक समस्या जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो अपने आप को गिल्ट में पाते हैं. Though they are good practicing Christians, but they feel that whatever they have done in the past at times haunts them. वो विश्वास में तो होते हैं पर उनका पास्ट, उनकी पुरानी बीती हुई बातें उनको परेशान करती है. And this guilt consciousness will put you very down. और ये जो गिल्ट कॉन्शियसनेस है ये आपको बहुत नीचे लेकर जाता है. There are people who say that I want to serve the Lord, but my past has been so bad. As a believer, I have been so bad. How can I serve the Lord? बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं मैं सेवकाई में आगे बढ़ना चाहता हूँ पर ऐसा कहते हैं कि मेरा जो पास्ट है वो बहुत बुरा रहा है इसलिए वो एक हैंगओवर बनकर रहा है इसलिए मैं सेवकाई में आगे बढ़ नहीं पा रहा. But there are some beautiful verses in the Word of God which say that God never keeps account of whatever you have done once He has forgiven you. पर परमेश्वर के वचन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात है उसमें ये लिखा है कि जो भी कुछ बातें हमारे पास्ट में हो चुकी है उसे परमेश्वर स्मरण नहीं रखता है. God says that as far as east is from the west,
west, so far will be your sins from you. और जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उतनी दूर मैं तुम्हारे गुनाहों को कर देता हूँ। I'll never remember your sins, but I'll put them deep into deep sea and forget them. मैं तुम्हारे पापों को नहीं स्मरण करता और उसे गहरे समुद्र में डाल देता हूँ। This is what God says to us. और यही बात परमेश्वर हमसे कहता है। And the revert words which come to the Shulamites are very encouraging. और यहाँ पर जो बातें उस शुलेमाइट की ओर आ रही है, वो बहुत ज्यादा उसको एनकरेजमेंट देती है। She is sending messages that she is lovesick, but here is the word of love which comes directly to her. और वो संदेशा दे रही है कि मैं प्रेम में रोगी हूँ, पर यहाँ पर एक संदेश उसके पास डायरेक्टली उस प्रेमी से आ रहा है। God is not waiting for your depressed messages to him through your pastor or through your counselor or through any other person. परमेश्वर आपके संदेश का इंतजार नहीं कर रहा किसी के थ्रू जो आप भेजते हो। You say, oh, I'm so backslidden. Please pray for me. Please let the Lord know that I'm suffering this way. आप कहते हो कि देखो मैं पीछे हट चुका हूँ, मैं पीछे जा चुका हूँ, परमेश्वर को बताओ कि मेरा ये हाल है। But God doesn't come via that minister, but He comes straight to you. पर परमेश्वर किसी के थ्रू नहीं आता, पर परमेश्वर स्वयं आपके पास आता है। And He comes and talks to you. और वो स्वयं आकर आपसे बातें करता है। And He encourages you and He puts you up again. और वो आपको प्रोत्साहित करता है और आपको ऊंचा उठाता है। See, the depression that we have in our spiritual life is a big wastage in our spiritual future. किसी भी तरह की निराशा हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वेस्टेज हो जाती है। Because in depression you do not do what you ought to do. क्योंकि डिप्रेशन में, किसी तरह की निराशा में आप वो नहीं करते जो आपको करना चाहिए। And unless you do what you ought to do, you cannot be rewarded. और जब तक आप वो नहीं करोगे जो आपको करना चाहिए, आपको उसका इनाम नहीं मिलेगा। So you miss very valuable rewards when you live in depression. तो आप बहुत महत्वपूर्ण अपने इनामों को खो देते हो जब आप डिप्रेशन में रहते हो। तो God doesn't want that. परमेश्वर वो नहीं चाहता। This is detrimental to your spiritual health and also to the spiritual health of the church. और ये कलीसिया की स्पिरिचुअल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हानिकारक है। That's why God wants to lift you up. इसलिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। Again and again he says, don't fear. और बार बार वो ये कहता है कि मत डरो। Somebody has said that it is more than 365 times that the Bible says, don't fear. और किसी ने ये कहा है कि वचन में 365 बार से 365 बार से ऊपर से ज्यादा लिखा हुआ है कि मत डरो। Perhaps one encouragement each day. और ऐसा हो सकता है कि हर दिन के लिए एक एक दिन का एनकरेजमेंट है। So we should look towards the Lord for His encouragement. तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि हम प्रोत्साहित बने रहें। The Bible says when God is with us or for us, who can be against और us? परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है? He is on our side. वो हमारी ओर है। The day we were born again till we live on this earth, He is always on our जब side. तक हमने उस नया जन्म लिया है और जब तक हम हमारा इस धरती पर आखिरी दिन है, तब तक वो हमारी तरफ है। So if God is with us, how can Satan defeat us? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो शैतान हमें किस रीति से हरा सकता है? He always wants to shelter us and to encourage us. और परमेश्वर हमेशा हमें बचाना चाहता है और हमारी प्रोटेक्शन करना चाहता है। So He encourages us. और इसीलिए वो हमें प्रोत्साहित करते We हैं। come to the chapter 6 and verse 4. हम छठवें वचन के छठवें अध्याय के चौथे वचन को देखेंगे। Till verse 3 we have seen last time. और तीसरे वचन तक हमने पिछली बार अध्ययन किया था। Verse 4 we will see now. और चौथे वचन को अब हम देखेंगे। Oh my love, you are as beautiful as Tirzah, lovely as Jerusalem, awesome as any army with banners. हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। Oh my beloved, you are so beautiful. हे मेरी सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो। And you are like Jerusalem and you are like Tirzah, beautiful cities. और तुम यरूशलेम और तिरसा के समान हो। See, these cities were not beautiful to look at in those days. ये जो शहर थे, ये इतने सुंदर नहीं थे देखने के योग्य से। But they were full of promises of God. पर परमेश्वर की वाचाओं से भरे हुए थे। Because God had tied Himself with these cities. क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इन शहरों से बांध रखा था। And particularly Jerusalem is like the apple of the eye of God. अब ये यरूशलेम
यरूशलेम जो है ये उसके आंख के सेब के समान है। So the Lord says that we have to be very careful that He loves us not because of our physical beauty, और परमेश्वर हमसे ये कहता है कि वो हमसे इसीलिए नहीं प्रेम करता कि हमारे शारीरिक सुंदरता है, but He has already released His words of promises upon पर us. उसने हमारे जीवन के लिए उसके वाचाओं को पहले से ही दे रखा है। And He says that you are beautiful because when I look at you, I see a beauty in you. और वो कहता है कि तुम सुंदर हो क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ मैं तुम में सुंदरता को पाता हूँ। You see, we know that Jesus is our role model in this world. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है इस दुनिया में। And when God sees each and every Christian, He sees them as Jesus. और जब परमेश्वर हर एक मनुष्य को जो विश्वासी है उसको देखता है, वो उसको यीशु के नजरिए से देखता है। You see, as Jesus is holy and blameless and perfect, so God wants us to be like Him. जिस तरह से यीशु निष्कलंक और पवित्र और सिद्ध था, उसी तरह से परमेश्वर हमें भी देखना चाहता In है। Philippians chapter 2, He says that your nature should be like the nature of Jesus और Christ. फिलिपियों 2 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु के समान हो। 1 John, He says that if you are light, you should walk as Jesus walked. और पहले यूहन्ना में ये लिखा है कि यदि तुम ज्योति हो तो तुम्हें उस तरह चलना है जिस तरह से यीशु चला है। Paul in his letters write, put on Jesus Christ upon और yourself. पौलुस अपने पत्रियों में ये कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। And then he says that unless you have the beauty of Jesus in you, I bear the birth pangs for you. और वो ये कहता है कि जब तक तुम में वो सुंदरता नहीं पाई जाएगी तब तक मैं वो जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। So it's very clear that God sees Jesus like perfection in तो us. बहुत स्पष्ट रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर हमें यीशु की सिद्धता को देखना In the book चाहता of है। Jeremiah, it is said, His name is our righteousness. और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि उसका नाम हमारी धार्मिकता है। So our righteousness is not within ourselves, तो हमारी जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर नहीं है, but our righteousness is in Jesus पर Christ. हमारी जो धार्मिकता है वो यीशु में है। God knows very well that we are zero and below zero till Jesus is not in our और life. परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम अपनी जिंदगी में जीरो लेवल पे हैं जब तक यीशु हमारी जिंदगी में ना आ जाए। So if we are at a lower ebb, He understands that. और जब यदि हम किसी निचले स्तर पर हैं तो वो उस बात को समझता है। And He doesn't punish us or scold us for that. और वो हमें किसी तरह से ताड़ना नहीं देता या हमें किसी तरह से वो पनिशमेंट नहीं देता। He understands what His task is. वो जानता है कि उसका कार्य क्या है। He has chosen the foolish people of this earth और उसने मूर्खों को चुन लिया इस दुनिया के, to teach something to the very knowledgeable people of this कि earth. वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। So God knows His task. तो परमेश्वर अपने कार्यों को जानता है। So the words that come back from the beloved are very encouraging. तो जो शब्द उस प्रेमी से आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहित And He करने says, वाले हैं। I see a beauty in you. और वो कहता है कि मैं तुम में एक तरह की सुंदरता को And the देखता हूं। other part what He says is this: और दूसरे भाग में हम जो देखते हैं वो ये है, awesome as an army with banners. और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। It appears that it is a victorious army. और हम ये देखते हैं कि वो जो फौज है वो विजय प्राप्त करने वाली See, फौज है। when they go for a war, they show their weapons. जब वो किसी तरह से जंग में जाते हैं तो वो अपने हथियारों को दिखाते हैं, But when they come back winning, they show their banners. पर जब वे जीत कर वापस आते हैं तो वो अपने झंडों को फहराते हैं। Now the Lord says that the lover says that you are like a winning army with all banners flying above them. और यहाँ पर प्रेमी कहता है तुम उस आर्मी के समान हो, तुम उस फौज के समान हो जो जीत कर आए हो और अपने झंडों को ऊंचे लिए हो, And you are awesome. और तुम अद्भुत हो, You see, भयंकर। when anybody looks at you, he is full of awe. जब कोई उसको देखता है तो वो बहुत आकर्षण से भर जाता है। This is beautiful. God says that you are not an ordinary being. ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर कहता है कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो, You are a winning army with all your banners. तुम एक विजयी आर्मी में हो, एक विजयी फौज में हो जिसके सारे झंडे फहरा You see, we रहे have हैं। already seen that the banner that hails above the head of the Shulamite is of love. हमने पहले ही देख लिया था कि जो झंडा उसके ऊपर फहरा रहा है वो प्रेम का है। So the book is full of banners. तो ये जो किताब है ये झंडों से भरी हुई है, It's full of a saga of victory. और ये एक कहानी है विजय की। And the beloved says that don't be depressed about whatever happened to you, but I see you as a
winning army with all banners. और प्रेमी कहता है किसी भी तरह से निराश मत हो जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी वजह से, पर मैं तुम्हारी जिंदगियों को सारे झंडों से भरा हुआ देख रहा हूँ। We should be very much encouraged. हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाना है। Whenever God sees us, He sees us as victors in this जब earth. परमेश्वर हमको देखता है वो हमें एक विजयी के रूप में देखता है। See, we are standing on the victory of Jesus Christ. देखिए हम यीशु की विजय में खड़े हैं And defeat is not for us. और जो हार है वो हमारे लिए नहीं है। We are called to win. हम बुलाए गए हैं कि हम जीते। We are destined to win. हमारी डेस्टिनी है, हमारा भविष्य है कि हम जीते। Because the head of the Satan is crushed on the cross. क्योंकि शैतान का जो सिर है वो क्रूस पर कुचल दिया गया So है। victory is earned and decided for us. तो जो जय है वो हमारे लिए खरीदी गई है और हमें दी गई है। So let's be faithful to the Lord and be encouraged in it. तो आइए हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। The next verse is more awesome. और इससे आगे का वचन और ज्यादा अद्भुत है। Turn your eyes away from me, for they have overcome me. अपनी आंख मेरी ओर से फेर ले क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। So the Hindi translation says that whenever I look at you, I get uncomfortable. और हिंदी ट्रांसलेशन में ये लिखा है कि जब भी मैं तुम्हारी ओर देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। But in the English translation, it's very beautiful. He says that your eyes have overcome me. और अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है कि तुम्हारी आंखों ने मुझे ओवरवेल्म किया है। You see, when you look at the Lord, जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो with all your love and affection and deep dedication to Him, सारे प्रेम और सारे डेडिकेशन के साथ, and when you stare at Jesus Christ, और जब यीशु की ओर आप निगाह को करते हो He is moved with that. तो वो उससे हिल जाता है। See, when you look at Jesus and when Jesus looks at you, there is an action on both the जब sides. आप यीशु को देखते हो और यीशु आपको देखता है तो दोनों तरफ से एक एक्टिविटी हो रही है। He is moved when you put your eyes upon the और Lord. वो हिल जाता है जब आप अपनी आंखों को उसकी ओर करते हो। See, there is a beautiful verse in Zephaniah chapter 3 and verse 17. सफनिया 3 और उसके 17 में एक सुंदर वचन है। The Lord says that I look at you, I stare at you, परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें ताकता हूँ और तुम्हारी ओर अपनी आंख करता and हूँ very quietly I put my eyes upon और you. चुपचाप से मैं तुम्हें निहारता रहता हूँ And then suddenly I start singing और फिर मैं अचानक से गाने लग जाता हूँ because you delight me. क्योंकि तुम मेरे मन को आनंदित करते हो। The reason for my singing is what my eyes have seen in मेरे you. गाने का जो कारण है वो ये है कि मेरी आंखों ने जो तुम्हारे लिए देखा है उस वजह से मैं गा रहा हूँ। You are so beautiful and you are so attractive that provokes me to sing. तुम इतने सुंदर और इतने आकर्षक हो कि मैं गाने लग जाता हूँ तुम्हारे लिए। The beloved says that your eyes are beautiful. और यहाँ पर जो प्रेमी है वो ये कहता है कि तुम्हारी आंख सुंदर है। When you look at me, जब तुम मुझे देखती हो you overtake me, you overcome me. तुम मेरे ऊपर हावी हो जाती हो। So your look decides my behavior. और तुम्हारा जो देखने का नजरिया है वो मेरे व्यवहार को डिसाइड करता है। You see, Jesus said your light of a body or a person is in his eyes. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यीशु कहता है कि एक मनुष्य के शरीर की जो आंखें हैं वो उसकी जो ज्योति है वो उसकी आंखें हैं। Because if your eyes are holy, यदि तुम्हारी आंखें पवित्र है then your whole body is holy. तो तुम्हारा पूरा शरीर शुद्ध है। So when you look at Jesus Christ with your eyes, यदि हम अपनी आंखों से यीशु को देखते हैं the holiness that Jesus has within himself, तो उसकी जो पवित्रता है जो यीशु में पाई जाती है that reflects from our eyes to him. वो हमारी आंखों से उसकी ओर रिफ्लेक्ट करती है And so he is overcome with that feeling. और फिर वो उस पे हावी हो जाता है। See, my holiness, my perfectness, my love which I hold is also seen in the eyes of this person. मेरी जो पवित्रता है, मेरी जो होलीनेस है, मेरी जो सुंदरता है वो मेरी आंख से दूसरे की ओर रिफ्लेक्ट हो रही है। You see, eye talks to other people. आंखें जो है वो दूसरों से बातें करती हैं। What kind of look we have depends on what reaction people will have. किस तरह से आप उनको देखते हो ये उस बात को पर निर्भर करता है कि in किस the तरह Bible से when सामने वाला आपकी ओर बात करेगा। In the Bible, when Jesus was arrested and was tried, जब वचन में हम देखते हैं जब यीशु मसीह गिरफ्तार कर लिया गया, then Peter denied him thrice. तो पतरस जो है उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। And when he denied him thrice, और जब यीशु का इनकार पतरस ने 3 बार किया, at the third time the cock also crew.
तो तीसरी बार मुर्गे ने भी बांग दी। And as the cock crew, Jesus turned his head and looked towards Peter. और जैसे ही मुर्गे ने बांग दी, यीशु ने पतरस की ओर देखा। And they had an eye contact. और उन्होंने आंखों से आंख मिलाई। And it is written in the Bible. और वचन में हम पाते हैं Peter was totally changed. कि पतरस जो है वो पूरी तरह बदल गया था। His fear was all gone. उसका जो डर था वो पूरी तरह चला गया था। Though he was not able to do anything in that situation. हालांकि वो उस परिस्थिति में कुछ नहीं कर पा रहा But था। immediately he went out of the scene. पर तुरंत वो वहां से बाहर निकल गया। He did not insist himself to be there and again deny again and again. उसने आपको उस परिस्थिति में नहीं रखा कि बार बार उसका इनकार करे। He left the scenario. उस जगह से वो चला गया। And that look so overcame him. और उसकी जो यीशु की जो नजर थी वो उसके ऊपर इतनी हावी हो गई That he wept bitterly. कि वो बुरी तरह से रोया। He was overcome by just a look of Jesus Christ. और यीशु की निगाह ने उसके ऊपर एक परिवर्तन को ले आया। See, the way the Lord looks at us is very encouraging. देखिए जो परमेश्वर का नजरिया है हमारी ओर देखने का, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रोत्साहन का कारण है। And the Lord says, don't worry whatever situation you are in. और परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात में चिंता मत करो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो तुम। Be aware of the fact that my look will encourage you. ये बात जान लो कि मेरे देखने के नजरिए से तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। And your look will overcome me. और तुम्हारा जो देखने का नजरिया है वो मुझ पर हावी होगा। You win me with your eyes. तुम अपनी निगाहों से मुझे जीतोगे। And I win you with my eyes. और मैं अपनी निगाहों से तुम पर जीत पाऊंगा। So this is the exchange of love in the eyes of the lovers. और ये आंखों के द्वारा प्रेम का बांटना है। And so then the lover says, or the beloved says that you are so beautiful. और यहाँ पर जो प्रेमी है वो ये कहता है कि तुम सुंदर हो। Verse 6 and 7. 6वें और 7वें वचन में हम देखते हैं। And we do not go about the physical beauty description in the Bible. हम शारीरिक सुंदरता के बारे में डिटेल में नहीं देखेंगे। Everywhere, whenever such verses come in, we understand that this is an integral part of a true love to understand the और physical beauty. जहाँ कहीं भी हम ऐसी बातों को देखते हैं तो वहाँ हम समझ लेते हैं कि किस तरह से वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी की फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब करना। Unless you describe the beauty, physical beauty of a person, you see a beauty in that person, you cannot love that person. और जब तक आप फिजिकल ब्यूटी को नहीं देखोगे तब तक आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। So Jesus not only loves you as a person, तो यीशु आपको एक व्यक्तिगत रीति से ही प्रेम नहीं करता, but he loves your being, your body, which is the temple of the Holy पर Spirit. वो आपको शारीरिक रूप से भी प्रेम करता है जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है। And once that temple is established within you, और जब वो मंदिर आपके अंदर बन जाता है, your body becomes so beautiful. तो आपका शरीर इतना सुंदर हो जाता है। Each and every part of your body is pleasing to the Lord. कि हर एक शरीर का भाग आपका परमेश्वर को प्लीज करता है। Your etiquettes and manners become spiritual. आपका जो एटिकेट्स है और आपके जो मैनर्स है, आपके रहन सहन का तरीका है वो आत्मिक हो जाता है। Your body language becomes spiritual. आपका उठना बैठना चलना फिरना आत्मिक हो जाता है। Your behavior with people and God becomes आपका spiritual. लोगों के साथ व्यवहार करना आत्मिक हो जाता है। This attracts God and you become beautiful. और ये जो है ये परमेश्वर को आपके प्रति आकर्षित करता है और आप सुंदर हो जाते हैं। There are crores and crores of people in this world. करोड़ों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, But the people who are in the church and beloved children of God, पर जो लोग कलीसिया में पाए जाते हैं और उसके बच्चे हैं, they are truly beautiful because they become the temple of the Holy Spirit. वे इतने सुंदर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। Once you become the temple of the Holy Spirit, you are becoming the temple of God Himself. और जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हो तब आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हो। So read Psalm 139, how beautiful you are created and how God decides everything that is in your physical और being. भजन संहिता 139 में ये लिखा है कि किस तरह से सुंदर रीति से परमेश्वर ने आपको फिजिकली बनाया है और किस तरह से आप सुंदर होते जाते हो उसमें। And then he says that you should appreciate your creation, particularly when you become the temple of the Holy Spirit. और जब आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हो तो अपने अंदर की सुंदरता को आप अप्रिशिएट करो, उसकी सराहना करो। You are not like an ordinary person. आप किसी आम आदमी की तरह नहीं हो। You are not just a human being. आप एक मेयर मनुष्य नहीं हो, You are a child of God. पर आप परमेश्वर के बच्चे हो। I would draw your attention to something beautiful in Psalm 82. मैं आपका ध्यान उस ओर लेकर जाना चाहता हूँ जो भजन संहिता 82 में पाया जाता है। तुम मनुष्य हो, मनुष्य के समान हो, तुम सब ईश्वर।
Psalm 82, where the psalmist says, भजन संहिता 82 जहाँ पर 6 Psalm 82 and verse 6, where God says that you are not a mere human being. छठवां वचन जहाँ पर परमेश्वर ये कहता है कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो. See, if you ask any person on this earth, what are you? You will say, we are human beings. यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि आप क्या हो, तो वो कहेंगे कि हम मनुष्य हैं. In the World Forum, if you ask anybody, what would you strive for? What would you stand for? What would you fight for? और यदि इस दुनिया में आप किसी से पूछोगे तो कि आप किसके लिए खड़े होना चाहते हो या आप किसके लिए लड़ना चाहते हो, Then you will say, I'll stand for humanity. तो वो कहेंगे कि हम मनुष्यत्व के लिए खड़े हैं. But God says humanity is not your asset. पर परमेश्वर कहता है कि जो इंसानियत है, मानवता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है. Divinity is for you. जो दिव्यता है वो तुम्हारे लिए है. God says that you are divine. परमेश्वर कहता है कि तुम डिवाइन हो. You see, this defies the language that the world speaks. और ये जो भाषा है उसको बदल देती है जो दुनिया करती है. The world will never say that I am in the divinity of God. दुनिया कभी नहीं कहेगी कि आप परमेश्वर की दिव्यता में हो. The world will always say that we honor and respect and take pride in the humanity that we have. और दुनिया ये कहेगी कि हम उस मानवता पे प्राइड लेते हैं जो हमारे अंदर पाई जाती है. They cannot understand the divinity in man. वो किसी भी तरह से परमेश्वर की दिव्यता को मनुष्य में नहीं देख सकते. See what Psalm 82:6 says. देखिए भजन संहिता 82:6 में क्या लिखा है. Yeah. मैंने कहा था तुम परमेश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो. The Lord says, I have said that you are all gods and you are the children of the Most High. परमेश्वर यहाँ पर ये कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा कि तुम परम प्रधान के पुत्र हो और तुम सब ईश्वर हो. You are not just human beings. आप एक साधारण मनुष्य नहीं हो. Take your divine identification from the Lord. अपनी दिव्य आइडेंटिफिकेशन को परमेश्वर से ले लीजिए. And unless you take that, you degrade yourself. और जब तक आप उसको नहीं ले लेते, आप अपने आप को एक निचले See what he says in the next verse. अगले वचन में हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है. तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे. Yes. You will die as a human being. फिर भी तुम मनुष्य के समान मरोगे. So will you die as a human being or will you die as a son of God? तो क्या आप मनुष्य के समान मरोगे या परमेश्वर के पुत्र के समान? My dear child of God, I am asking you. मैं आपसे पूछ रहा हूँ परमेश्वर के बच्चों. What is your end designated as or recognized as? आपका अंत किस तरह से डेजिग्नेट किया जा रहा है? When you die, will you die as a human being or will you die as a child of जब God? आपकी मृत्यु होती है तो आप एक मनुष्य की तरह मरोगे या परमेश्वर के पुत्र की तरह मरोगे? See, we have all divinity enshrined to us. जो हमारे अंदर दी गई है वो सारी दिव्यता हमें पाई जाती है. And God says, I'll make you divine and I'll make you my children. और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें डिवाइन करूंगा और तुम्हें अपने बच्चे बनाऊंगा. Unless you be my child, you will die as a human और being. जब तक तुम मेरे बच्चे नहीं बन जाते तुम एक मनुष्य की तरह ही मरोगे. So every creation, every human, every man who is created by God is a human being. तो हर एक व्यक्ति जो बनाया गया है, जिसकी रचना हुई है, वो एक मनुष्य है. Every person, each and every person in this world is a human being. और हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पाया जाता है वो एक मनुष्य है. But the church and the people who are born again in Jesus Christ, पर मसीह की कलीसिया और वे लोग जो मसीह में नया जन्म पा चुके हैं, they are the children of God. वे परमेश्वर के बच्चे हैं. So would you die in the Lord or would you die as a human तो being? क्या आप मनुष्य की तरह मरना चाहेंगे या Again- परमेश्वर के पुत्र की तरह मरना Again, I'll चाहेंगे? remind you the verse from Revelation chapter 14. एक बार फिर मैं आपको प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के एक वचन को स्मरण दिलाना Blessed चाहूंगा. are those people who die in the Lord, धन्य है वे लोग जो मसीह में मरते हैं, because they get rest from their labor क्योंकि वे अपने कामों से विश्राम and पाएंगे their good works accompany them. और उनके भले काम उनके साथ हो लेंगे. The works that they do on this earth will go with them to जो heaven. काम वे यहाँ पर दुनिया में कर रहे हैं वे उनके साथ स्वर्ग में हो लेंगे. All human beings on this world are saying that you just think what will go with you. और सारे मनुष्य यहाँ पर दुनिया में कहते हैं कि सोचो साथ क्या जाएगा. And we say that we are not able to take anything with us to और God. हम कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे साथ में. But children of God have a privilege to carry their good works, their glorious works
to the heavenly places और with them. परमेश्वर के बच्चों को ये प्रिविलेज मिला है कि वे अपने भले कामों को अपने साथ स्वर्ग में लेकर So it's जाएं। very easy to understand the difference between just being a human being and being a child of God. बहुत आसान सी बात है कि हम इस बात को समझ लें कि एक आम आदमी बनने में और परमेश्वर के पुत्र बनने में क्या अंतर है। See, the world is so much in sin and death और ये दुनिया है इतने पाप से भरी हुई और इतनी मृत्यु से भरी हुई, that highest word for them is humanity. तो इनके लिए जो सबसे उछला स्तर का जो शब्द है वो है मानवता। But we are so filled with the presence of the Lord. पर हम परमेश्वर की प्रेजेंस से इतने ज्यादा भरे हुए हैं, The watchword for us is that we are children of तो God. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो यह है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। In this light, we will see the next verses. और इस प्रकाश में हम आगे के वचनों को देखेंगे, Verse 8 and 9. 8वां और 9वां। There are 60 queens and 80 concubines and virgins without number. वहाँ 60 रानियां और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी है। Now the writer of the song Solomon says that there are many ladies over there. और यहाँ पर लेखक जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। You see, there are queens, यहाँ पर रानियां हैं, there are concubines, यहाँ पर रखेलियां हैं and also there are virgins. और यहाँ पर कुमारियां हैं। So the number is 60 queens, 80 concubines, but virgins are so many, you cannot number them. और यहाँ पर जो नंबर है वो 60, 80 और जो कुमारियां हैं वो असंख्य है। So there are many people available to the king. तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उपलब्ध है राजा के लिए। Then in his palace there is no dearth of women. और उसके राज्य में, उसके महल में महिलाओं की किसी भी तरह की कमी नहीं है। The Song of Solomon, the beauty of this song is that when Solomon had so many concubines and wives, why did he love the Shulamite? और यहाँ पर हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में जब सुलेमान के साथ पास इतनी सारी पत्नियां थी तो उसने शुलमाइट से प्रेम क्यों किया? You see, he was still thirsty and hungry of a true love. और वो फिर भी भूखा था और प्यासा था एक सच्चे प्रेम के लिए। Everything was there available to him. उसके पास सब कुछ था। But he was looking for somebody who had a real meaning of love for him. पर वो किसी के लिए देख रहा था, किसी की ओर देख रहा था जिसके जीवन से उसको सच्चा प्रेम मिले। It is said that Shulamite was a country girl. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो शुलमाइट है वो एक गांव की लड़की थी। And her name comes with the area that she lives in. और जिस जगह पर वो रहती थी उसका नाम वहां से आता है। The king doesn't appreciate the queens and the concubines and the virgins. और यहाँ पर जो राजा है वो अपनी रानियों को, रखेलियों को और कुमारियों को इतना अप्रिशिएट नहीं करता। See, you have to match this with what I shared with you a little bit earlier. आपको इससे उस बात से मिलाना है जिस बात की मैंने चर्चा थोड़ी देर पहले आपसे की। See, there are so many human beings in this world. बहुत सारे इंसान इस दुनिया में हैं। But the children of God are altogether different from पर them. परमेश्वर के जो बच्चे हैं वो इन सब से अलग है। Solomon says that the world is full of people. और सुलेमान कहता है कि दुनिया जो है वो बहुत सारे मनुष्य से भरी And है। every human being the Lord looks at. और हर एक मनुष्य की ओर परमेश्वर देखता He है। cares for everybody. वो हर एक की चिंता करता है। He arranges for everybody's food and live and stay. वो हर एक के खाने का, भोजन का और रहने के स्थान का इंतजाम He करता है cares for everybody. और हर एक की चिंता करता है। These are like queens and concubines and virgins which are in his palace. और ये उन लोगों की तरह है जो राजा और वो रानियों और रखेलियों और कुंवारियों की तरह उस पैलेस में, उस महल में पाई जा रही है। But he is not getting his answer in the palace. पर उसके महल में उसको उत्तर नहीं मिल रहा। See, the world is full of people and good and nice people, but the king is not getting an answer in this world. देखिए, पर इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य हैं पर राजा को अपना उत्तर इस दुनिया में नहीं मिल पा रहा। And he is looking for the beautiful bride that he is preparing in Jesus Christ. और वो उस दुल्हन को देख रहा है, उस दुल्हन की ओर देख रहा है, वो जो यीशु मसीह में वो तैयार कर रहा है। Verse 9. 9वें वचन में हम My देखते हैं, dove, my perfect one, is the only one. परंतु मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल अद्वितीय है। There cannot be two of that kind. कोई भी दो मनुष्य उस तरह का नहीं हो सकता। She is the only and only my beautiful thing. सिर्फ वो उसके लिए सबसे सुंदर और अद्भुत है। So
there are so many available, but there is one whom he has opted to be his own. बहुत सारे उसके लिए मौजूद हैं, पर सिर्फ एक है जिसको वो पाना चाहता है. You cannot replace that person with 60 or 80 or innumerable. और आप उस व्यक्ति को उन 60, उन 80 या उन असंख्य लोगों से रिप्लेस नहीं कर सकते. The church is unique and Jesus loves his church specially, and the church is totally different from anybody in this earth. कलीसिया जो है वो यूनिक है और उसकी तुलना या उसका रिप्लेसमेंट किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति विशेष से नहीं कर सकता. Why is this Shulamite so different? ये शुलेमाइट, ये वधु क्यों इतनी अलग है? Because she is one of her own type. क्योंकि वो अपने में एक स्पेशल रीति की है. She has a special love for the beloved. और उसके हृदय में अपने प्रेमी के लिए एक स्पेशल तरीके का प्रेम है. When they look at each other, a different kind of love emerges. जब वे एक दूसरे की ओर देखते हैं तो एक अलग तरह का प्रेम उनके अंदर उजागर होता है. This love is not available in the whole world. इस दुनिया में किसी भी तरह से इस तरह का प्रेम नहीं उपलब्ध है. There are so many body and people available in this world. बहुत सारे शरीर और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं. The love of church is not available anywhere else. पर कलीसिया का जो प्रेम है वो कहीं और नहीं पाया जाता. My dove, my perfect one and the only one of her mother. मेरी कबूतरी, मेरी निर्मल, अद्वितीय है, अपनी माता की इकलौती. She is just the only daughter of her mother. और वो अपनी माता की इकलौती है. And further he says the favorite of the one who bore her. अपनी जननी की दुलारी है. Her mother loves her. उसकी जो माता है वो उससे प्रेम करती है. Because she is altogether different. क्योंकि वो एकदम से अलग है. And because she is altogether different, she cannot be compared with anybody. और वो पूरी तरह से अलग है, इसलिए उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती. The king also acknowledges that she is extraordinary and unique. और यहाँ पर जो राजा है वो भी ये कहता है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुल्हन है और अलग है. And her mother also acknowledges that she is beautiful. और उसकी माता भी यहाँ पर कहती है कि वो सुंदर है. See, when we live in this world, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, the people around us also appreciate the holy church. लोग जो हैं आसपास के वो भी परमेश्वर की कलीसिया की सराहना करते हैं. In the book of the Acts of the Apostles it is written. और प्रेरितों के काम की पुस्तक में ये लिखा है. The people who saw the church from outside, they were in a holy fear of the church. और जो लोग बाहर से कलीसिया को देखते थे वो अपने अंदर एक पवित्र भय को रखते थे. They were much appreciative of the new body which was created in Jesus. और नई कलीसिया जो यीशु मसीह में पैदा हुई थी वो उसकी सराहना करते थे. And they felt that this is something awesome and different. We cannot find such thing anywhere else. और वे मानते थे कि ये किसी तरह की अद्भुत और अचंभित रीति से बनाई हुई चीज है जो कहीं और नहीं पा सकते. So there were many who were added by God to the church. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के द्वारा कलीसिया में जोड़े गए. So the church became beautiful and large in number. और कलीसिया जो है वे सुंदर होती गई और बड़ी होती गई. But there were very many people who were looking at the church from outside and appreciating her. पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कलीसिया को बाहर से देख रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे. The daughters saw her. पुत्रियों ने उसे देखा and called her blessed. और धन्य कहा. The queens and the concubines रानियां और रखेलियों ने उसे देखा and they praised her. उसकी प्रशंसा की. All the systems, all the worship systems of this world, all the practices of this world, spiritual, religious, administrative, and all kinds of things. इस दुनिया की सारी प्रथाओं ने, सारी परिस्थितियों ने और सारी तरह की जितनी भी योजनाएं हैं इस दुनिया की, उन सब ने देखा उसको. They saw the church. उनने कलीसिया को देखा and they praised her. और उसकी सराहना की. You see, you yourself are a queen. देखिए, आप खुद एक रानी हैं. You yourself are a concubine. आप खुद एक रखेल हैं. You yourself are a virgin. आप खुद एक कुंवारी हैं. You are kept separate in the kingdom in the palace of the king. आप राजा के महल में अलग से रख दिए गए हो. But you do not appreciate yourself. You do not appreciate each other. You are appreciating the Shulamite. पर आप अपने आप की सराहना नहीं करते. आप अपने आप को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते. पर आप उस वधु की सराहना कर रहे हो. Isn't it beautiful?
क्या ये सुंदर बात नहीं है? See, the Lord says that she is unique, and if He says that she is unique, everybody has to call her unique. परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि वो एक महत्वपूर्ण चीज है और वो यूनिक है, तो हर एक को कह देना है कि वो एक यूनिक चीज है। The queen, the concubines, the virgins cannot imitate her. और जो रानियां रखेल और जो कुंवारियां हैं वो उसके समान नहीं बन सकती। They are far much below her dignity. और वे कलीसिया की डिग्निटी से काफी नीचे हैं। That's why the lover, the beloved says that she is unique. इसलिए जो प्रेमी है वो उससे कहता है कि वो यूनिक है। My dear ones, मेरे प्रिय लोगों, Shulamite must have been encouraged by this word. जो शुलमाइट है वो इन वचनों को सुन के बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुई। When this word comes to the Shulamite, जब ये वचन उस शुलमाइट के पास पहुंचा, she is encouraged. वो प्रोत्साहित होती है। She leaves her house. वो अपने घर को छोड़ देती है। She had a lot of bitter experiences. और उसकी जिंदगी में उसने बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस को In झेला the है। night time when she went into the city, people misbehaved with her. और जब रात को वो ढूंढने के लिए अपने प्रेमी को अब शहर में गई तो लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। But then she came back and she got a word from her lover. और जब वो वापस आती है तो अपने प्रेमी से वो एक शब्द को पाती है। Now she is not confined to her house. और यहाँ पर वो सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं है। I would draw your attention to verse 11 and 12. मैं आपका ध्यान 11वें और 12वें वचन की ओर ले जाना I चाहता went हूँ। down to the garden of nuts मैं अखरोट की बारी में उतर गई to see the venture of the valley, कि तराई के फूल देखूं to see whether the vine had budded और देखूं कि दाखलता में and कलियां the लगी pomegranates had bloomed. और अनारों में फूल खिले कि नहीं, Before I was even aware, और इससे पहले कि मुझे मालूम भी होता, my soul had made me as the chariots of my noble people. Verse 12. ओके, मुझे पता भी न था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। See, when you see when people go into imaginations, जब आप किसी तरह की सोच में चले जाते हैं, you see when a girl is engaged to somebody, जब एक लड़की की सगाई किसी व्यक्ति के साथ होती है, she sits in a place and she doesn't know, she is not aware, and she goes into the imagination that she is in the groom's house. वो एक जगह पर बैठी होती है पर उसके विचार जो है वो अपने दुल्हे के घर पर लेकर जाते हैं उसे। See, the extreme kind of love takes you into the imagination of being with your lover. और यदि बहुत ज्यादा लेवल का प्रेम होता है तो आप उस इमेजिनेशन में चले जाते हो जो आपके प्रेमी के साथ होने वाला See होता the है। miraculous turnaround. देखिए यहाँ पे जो आश्चर्यचकित बात है, जो मोड़ है, वो देखिए किस तरह She से was so depressed and she was confined to her room. वो बहुत बुरी तरह से निराश थी और अपने कमरे में बैठी हुई थी। And to her friends, she says that he'll be found in the fields and tending after his sheep, and his fields, just go and find him there. और अपने मित्रों से उसने कहा कि जाकर उसको ढूंढो और वो अपने खेत में पाया जाएगा, अपनी बारी में पाया जाएगा और अपनी भेड़ों की चराई कर रहा And when you होगा। find him, tell him that I am और lovesick. जब तुम उसे पा लो तो कह देना उससे कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। Whether he likes me or not, I do not know. यदि वो मुझे पसंद करता है कि नहीं करता, वो मुझे पसंद But पता the नहीं। reverse word came which encouraged the पर Shulamite. उल्टा उसके पास एक शब्द आता है, एक संदेश आता है जो उसको प्रोत्साहित कर And we देता have है। studied the reverse words that come from the lover to और her. हमने देखा कि क्या शब्द उसने, क्या संदेश उसने अपने प्रेमिका के लिए कहे। And the testimony of the Shulamite is, और यहाँ पर जो गवाही वो दुल्हन देती है वो ये I है came out to my garden. कि मैं अपने बगीचे में बाहर आई। I wanted to see the beauties and the beautiful things that are coming up. और मैं सुंदरता को और सुंदर चीजों को जो आ रही है वो उसको देखना चाह रही My थी। love within me was revived. मेरा जो प्रेम मेरे अंदर पाया जाता था वो फिर से जागृत हो गया। Now I am not confined to my closed doors and weeping for myself. और अब मैं उस बंद कमरे में सीमित नहीं हूँ और अपने लिए रो नहीं रही। But as I went out, पर जैसे ही मैं बाहर निकली,
I never knew, but I rode the chariot of my imagination. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर मैं अपने उस रथ के ऊपर पाई गई जो मेरे दूल्हा जिस पर आने वाला है। And I was imagining that I am with him. और मैं उसको सोच रही थी कि वो मैं उसके साथ हूँ। And all my sorrows were taken away. और मेरा सारा दुख मुझसे ले लिया गया। And now I am not within myself because my imaginations are not in my control. और अब मैं मेरे अंदर नहीं पाई जाती क्योंकि मेरी जो सोच है वो मेरे नियंत्रण में नहीं। The drive of my love is so strong. मेरा जो प्रेम की जो ड्राइव है वो इतनी मजबूत है That I am not aware the moment I get into my imaginations. और मुझे पता ही नहीं कि मैं कब उस सोच में चली जाऊंगी। And I imagine myself being with my lover. और मैं ऐसा सोचने लगूंगी कि मैं अपने प्रेमी के साथ हूँ। And this is depicted as she riding a chariot और ये and going up. ये उस तरह से दर्शाया गया है कि वो एक रथ पर बैठी है और ऊपर जा रही है। You see, the highest thing that we have is देखिए, सबसे ऊंची चीज जो हमारी जिंदगी में glorious है, imaginations in the Lord. वो महिमा की बातें हैं जो परमेश्वर में है। You see, when you live in this world, you have so many sorrows and problems and difficulties. जब आप इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां When होती we हैं। enter into the Word of God, we start reading it. और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लग जाते हैं The word of encouragement comes to us. तो परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है उन वचनों के द्वारा। And we are so taken up by His words और हम इतने ऊंचे स्तर पे आ जाते हैं उसके कि we वचनों ride से the chariots of our कि imagination हम अपनी सोच के उन रथों पर आ जाते हैं and we move with our lover on the higher और places. अपने प्रेमी के साथ हम उछले स्तरों पर आ जाते You हैं। see, if you are seeing the problems of this world and are in depression, और यदि आप इस दुनिया की बातों को देखकर निराश हो then better ride the chariots of your imagination. तो अपने विचार के रथों पर आ जाओ, Because Jesus is coming again. क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। You have a resurrection and a new body in Jesus और Christ. आपके पास पुनरुत्थान और नए बदन की प्रॉमिस है यीशु You मसीह will में। reign and rule with Him. और आप उसके साथ राज्य करने जा रहे And you will हैं be with Him forever and ever in the heavenly और आप places. उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में सदैव रहने जा रहे Do हैं। these things come into your imagination? क्या ऐसी सारी बातें आपकी सोच में आती हैं? Or are you just looking after the problems which are around you? और या केवल आप सिर्फ उन बातों में घिरे रहते हो और समस्याओं में घिरे रहते हो See, जो आपके आस पास है। The parables of Jesus Christ teach us that we should be ready and be prepared to meet our Lord. और दृष्टांतों में यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हमें तैयार रहना है और अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाना है। So our hearts should be gripped with the feeling of meeting our Lord. तो हमारे जो हृदय है वो तैयार होने चाहिए कि हम परमेश्वर से मिले। Every botheration, every problem of this world should. And if the word of God is touching you again, और यदि परमेश्वर का वचन आज आपको फिर से छू रहा है and with the power of resurrection of Jesus Christ, और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह में, if you are raised up to the higher chariots, यदि आप उन रथों में ऊपर उठ रहे हैं then it's God's blessing to तो you. ये आपके लिए परमेश्वर की आशीषें हैं। The purpose of this word will only be solved if you are on a higher step. इस वचन का जो पर्पस है ये तभी पूरा होगा यदि आप एक उछले स्थान पर आ जाएंगे तो। The purpose of this ministry will only be fulfilled if you live on a higher step. और इस सेवकाई का जो पर्पस है वो एक हायर लेवल पर तभी आएगा और इसका पर्पस तभी फुलफिल होगा जब आप एक उछले स्थान पर आ जाएंगे। May it not be just a delight for your ears, सिर्फ आपके कानों के लिए एक अच्छी बात ना हो ये, but a real uplift for your soul. परंतु ये आपकी आत्मा के उत्थान के लिए हो। Pray to the Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करें। This is possible, my dear brothers ये and हो sisters. सकता है मेरे प्रिय भाई और And बहनों, God shall do this in your और life. परमेश्वर ये आपकी जिंदगी में जरूर करेगा। Ride the chariots of your imagination आपकी जो सोच के जो रथ है उसके ऊपर आ जाइए and live with Jesus in the higher और place. यीशु के साथ रहिए उन उछले स्थानों में। May the Lord bless this word. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। Let's close this with a prayer by Sharon and then we'll move further. आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे सन्मुख खोला है। प्रभु यीशु, हमारे विचारों को, हमारे सोचों को, हमारे जीवनों को यीशु राजा आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, जिस तरह से आप हमें चाहते हैं कि हम उछले स्थानों पर पाए जाए परमेश्वर, हमारी जिंदगियां परमेश्वर आज के बाद से परमेश्वर एक नए स्तर पर आने वाली हो सके। प्रभु, हम किसी भी तरह से संसार की बातों में मग्न ना हो और हम किसी भी तरह से संसार की
चिंताओं में परमेश्वर पड़े न रहे, पर परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर उन स्वर्गीय स्थानों में पाए जाने वाले हो सके। प्रभु अपने सामर्थ्य और अपने आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर आप हमें उस जगह पर लेकर जाए। प्रभु आप प्रतिदिन हमसे बातें करें, आप प्रतिदिन हमें नए दर्शन दे, आप प्रतिदिन हमें नए स्वप्न दे परमेश्वर, क्योंकि आप हमें शीघ्र लेने आने वाले हैं परमेश्वर। वो बातें जो स्वर्ग से उतरती है परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों में आने वाली हो सके प्रभु, और हमें नए स्तर पर लेने जाने वाली हो सके परमेश्वर। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप हर एक को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक की जिंदगी को एक नए स्तर पर लेकर जा रहे हैं राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इस सुंदर वचन के लिए एक बार फिर यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी आत्माओं को आज तृप्त किया है। प्रार्थना प्रभु यीशु हम आपके सामर्थी नाम से